Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 787. اگر کہیں کوئی سنت ملے سدھیرا سمجھنے رہی مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو. دیندارو، آج ہمارے امام کا جنم دن ہے. جنم دن ایک انسان کا ہوتا ہے. جنم دن کسی بدن کا ہوتا ہے. روح کا جنم دن نہیں ہوتا. رسولوں، نبیوں اور اماموں نے دنیا کے اندر جسمانی حالتوں کے اندر نارمل خدا تعالیٰ کی فطرت اور قدرت کے حساب سے جنم لیے، پیدائش ہوئی. ہم جب اپنے اسماعیلی طریقے کو دیکھتے ہیں، جو ہمارا طریقہ شریعت سے بالکل جدا ہے، ہمارا اسماعیلی مذہب شریعت سے بالاتر ہے، لیکن ہمارے بہت سے بھائی بہن جو مذہب سے واقف نہیں، اچھی طرح اسماعیلی طریقے کو سمجھے نہیں، اور ہمارے عام مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کے یا عام جو کتابیں ہمیں بازار میں بک سٹال کے اندر ملتی ہیں، علاوہ اس کے ہم یاروں دوستوں میں بیٹھ کے جو باتیں چیتیں کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو کبھی کبھی، یعنی ہم اسماعیلی خصوصاً جوانوں کو، ایک قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے. ہم خیالوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ سچ مچ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ عام مسلمانوں کے ساتھ مل کے جب ہم اپنے طریقے کی باتوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے بھائیوں بہنوں کے دل کے اندر ہچمچاہٹ پیدا ہو جاتی، اور ہچمچاہٹ کے علاوہ ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے. ہچکچاہٹ کہتے ہیں ہیزیٹیشن کو. آپ نے کسی مسجد کے اندر یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیکھی، ہوتی بھی نہیں. آپ نے کسی مسجد کے اندر اس طرح سے یہ پاٹ رکھے ہوئے ہیں اور پیسے دیتے کسی مولوی کو لوگوں کو دیکھا نہیں. مسجدوں کے اندر یہ اس طرح سے گھٹ پاٹ کی چھوٹی چھوٹی پیالیوں کے اندر آب صفا، یا اگر وہ لوگوں کا خیال کریں تو آب زمزم اس طرح سے دیتے ہوئے ہم نے کبھی کسی مسجد میں نہیں دیکھا. تو ہم لوگوں کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم مسلمان ہیں پھر بھی مسلمان نہیں؟ کیا ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام سے کچھ جدا ہے؟ اور عام مسلمانوں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں، یا ہماری بہت سی لڑکیاں مسلمانوں سے شادی کر لیتی ہیں اور بہت سے لڑکے مسلمان عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، تو ان کے درمیان یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کیا بات ہے، ہم مسلمان ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے مذہب کو ابھی تک سمجھا نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم شریعت سے اونچے ہیں. شریعت ہمارا مذہب نہیں ہے. شریعت یہ ہے کہ مسجد میں جاؤ، نماز پڑھ کے گھر چلے جاؤ، اور کبھی مسجد میں نہیں جانا تو گھر پہ نماز پڑھ لو. رمضان کا مہینہ آیا تو روزے رکھ لو، نہیں رکھنے تو لوگوں کو کہو میں نے روزہ رکھا ہے. یہ شریعت ہے.
आज दुनिया के अंदर 90% मुसलमान रोजा नहीं रखते, मगर कहते हैं हमने रोजा रखा है, क्योंकि दूसरों के सामने खाते ही नहीं। और हम इस्माइली हैं, सबके सामने खा लेते हैं। और कभी कोई पूछे तो तुम इस मुसलमान हो, तो हम कहते हैं हम मुसलमान नहीं हैं। कुरान पढ़ते हो कि कुरान हमारा नहीं है। आगा खान को क्या मानते हो? हम उसको खुदा मानते हैं। अरे ये सब बातों से तुम अपने हाथ पांव खुद छुरी से काट रहे हो। शरीयत का लिहाज रखो, क्योंकि शरीयत को हम भी मानते हैं उस तरीके की नहीं। हमारी शरीयत है, इस्लाम की शरीयत को हम मानते हैं, मगर हमारी शरीयत उन लोगों से अलग है, क्योंकि हमारा मजहब जो है वो तरीकत का है। हमारा मजहब सूफीज़म से मिलता है। हमारे मजहब के अंदर एक मुर्शिद है, हम उस मुर्शिद से प्यार करते हैं। वो मुर्शिद जो है वो अल्लाह के रसूल की हाल में से है। हम उस मुर्शिद को पीर भी कहते हैं, उसको इमाम भी कहते हैं, और हम उसके साथ इतनी मोहब्बत रखते हैं कि जितनी अल्लाह रसूल के साथ रखते हैं। आप समझे? हम अपने इमाम के साथ इतनी मोहब्बत रखते हैं कि जितनी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं। अबू ज़र गिफ़ारी एक दिन सुबह के वक्त बैठे थे, रसूल अकरम के इर्द गिर्द बहुत से लोग से एक एक करके चले गए। मैंने आपको ये बात सुनाई हुई है, 2 बरस पहले आया था, सुनाई हुई है, फिर सुनाता हूं ताकि जो नए आए हैं उनको याद रह जाए, और पुराने भूल गए हैं तो याद हो जाए। सब चले गए। अबू ज़र गिफ़ारी रसूलुल्लाह के आशिकों में से थे। अबू ज़र गिफ़ारी ने बड़े दुख उठाए हैं, बड़े दुख उठाए हैं मुआविया के जमाने में। उस्मान ने भी उसका बहुत खून पिया और मुआविया ने भी। अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं, या नबी आज कुछ बात सुनाओ। सब लोग चले गए, अकेले हो गए। रसूल पाक आंखें निगाहें नीची थी, हाथ में तस्बीह थी, जिक्र कर रहे थे। सारी रात का उजागरा था और नबी तो जागते थे। निगाहें नीची रखी हुई हैं। फरमाया है, अबू ज़र तू मुझे कितना चाहता है, यानी तू मेरे से कितनी मोहब्बत करता है। ये को पूछने की बात थी। दिल में कहने लगा, या नबी मैं आपको वल्लाह अपने माँ बाप से ज्यादा चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया, ऐ अबू ज़र तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ। आबिद इंसान था, परहेजगार था, कुर्बानियां देने वाला शख्स था, अल्लाह रसूल से प्यार करता था। उसको जब ये पता लगा कि मैं अभी तक रसूलुल्लाह के इस सवाल पर से कि मेरा ईमान कैसे, यानी मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ, और जवाब में ये कि मेरा ईमान अभी तक कामिल नहीं हुआ, उसको एक धचका लगा, हैरान हो गया, परेशान हो गया। एक आध मिनट चुप रहने के बाद कहता, या नबी मैं आपको अपने माँ बाप बीवी बच्चे माल दौलत यहाँ तक के मेरी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम इसी तरह से बैठे थे, आंखें नीची थी, तस्बीह चल रही थी। फरमाया, आए अबू ज़र अभी भी तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ। बड़ा हैरान हुआ, सोच में पड़ गया, दिल घबराने लगा। या अल्लाह मेरे में क्या कमी रह गई, कौन सी चीज करूं कि मेरा ईमान कामिल हो। बेहिसाब ख्यालात पैदा हो रहे थे। काफी अरसा हो गया, मगर वो अरसा क्या, कोई 10-20 मिनट नहीं, उस वक्त तो आधी पौनी 1 मिनट भी बड़ी लगती है। खामोश होने के बाद जोश में आ गया, खून गर्म हो गया, जज्बा पैदा हो गया, मोहब्बत में तूफान आ गया। रसूल पाक के घुटनों को हाथ लगा के कहता है, या रसूलुल्लाह, जोश में आ गया। जब घुटनों को हाथ लगाया, रसूल पाक ने उसकी आंखों में आंखें डाली। क्या बिजली थी उन आंखों के अंदर। घुटनों को हाथ लगा के जोश में आ गया, मुंह लाल हो गया,
कहता खुदा की कसम या रसूलुल्लाह, मैं आपको इतना चाहता हूँ जितना अल्लाह को चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने दोनों हाथ उसके कंधों पे रख दिए। आए अबू सर, अब तेरा ईमान कामिल हो गया। बात ऐसी है, यह चीज हदीसों में मौजूद है। आप जब हदीस की बात पूछते हो तो बाजार में जाके बुखारी खरीद लाओ, तो आपको ये हदीस बुखारी में नहीं मिलेगी। अभी अबू मुस्लिम की हदीस खरीद लाओ तो उसमें भी नहीं मिलेगी। बात ऐसी किताबें हैं कि जो आम लोगों के हाथों में नहीं आती। आपको ये पता है कि अहादीस कुदसिया भी है, वो हदीसें कि जो आम लोगों से छुपी हुई हैं लेकिन मिलती हैं बाजार में। अबू ज़र ग़िफ़ारी और रसूलुल्लाह की जब ये बात हुई थी तो अबू अली उधर हाजिर नहीं था। मैंने भी तो पढ़ा है ना। जो शिया लिटरेचर है उसके अंदर ऐसी किताबें मौजूद हैं, सूफियों की ऐसी किताबें मौजूद हैं जिनमें ऐसे ऐसे हालात मिलते हैं। एक बहुत जबरदस्त आलिम तेहरान यूनिवर्सिटी का था, उसका नाम था नस्र, अबू नस्र। वो बहुत बरसों तक बैरूत की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एयूबी में मौलाना हजर इमाम की तरफ से आगा खान चेयर संभाले रहा था बहुत बरसों तक। फिर वो चला गया तेहरान। मेरे साथ उसकी खतो किताबत भी थी, मैं उसको पर्सनली भी मिला हुआ हूँ। ईरान के हालात ऐसे हो गए हैं, मैंने बहुत से खत लिखे, कुछ पता नहीं लगता जिंदा है, अगर है तो कहाँ है। उसने किताब लिखी रियलिटीज ऑफ इस्लाम, इंग्लिश किताब है, लंदन में छपी हुई है। उसने एक हदीस का जिक्र किया है। यह हदीस भी आपको बुखारी, मुस्लिम, माजा वगैरह के अंदर के मिशकात में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी हदीसें सुन्नियों की लिखी हुई हैं। ये हदीसें जो आम हमको, जिनको हम सुहासिता कहते हैं, यानी 6 सही हदीसें, और मिशकात में उनको इकट्ठा किया गया है। ये हदीसें तो बनी उमैया के जमाने के अंदर बनी उमैया के कहने से लिखी गई। लेकिन आपको ऐसी किताबों को ढूंढना चाहिए कि जिनके अंदर असलियात मिलती है। रियलिटीज ऑफ इस्लाम, उसने एक हदीस का जिक्र किया है, और इस हदीस का जिक्र मौलाना रूमी ने भी किया है। रसूल पाक फरमाते हैं अना अल अरब बिला आइन, फिर फरमाया अना अल अहमद बिला मीम। इंग्लिश किताब के अंदर इस हदीस का जिक्र करता है, और यह हदीस आपको सुहासिता में नहीं मिलती। तो मैंने आपको ये 2 हदीसें बयान की, इसका मतलब आप खुद ही कर लेना। अनाल अरब बिला आइन, अनाल अहमद बिला मीम, मैं उसका मतलब नहीं समझाता, खुद कर लेना, खुद समझने की कोशिश करना। हमारा जो तरीका है ये सूफियाना तरीका है, ये मिस्टिसिज्म है, इसमें मोहब्बत पैदा है, इसमें कुर्बानी है, इसमें देना ही देना है, लेना कुछ नहीं। शरीयत जो है वो उन लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, उनको अलिफ बे सिखाई जाती है, तहज्जी सिखाई जाती है, बस। हमारा जो तरीका है वो तरीका एक मुर्शिद का है। मुर्शिद की पहले बैत की जानी चाहिए, मुर्शिद के हुक्म पे अमल किया जाना चाहिए, मुर्शिद कहे उस तरीके पे अमल करना चाहिए। शरीयत नहीं है, ये तरीकत है। लेकिन अगर कोई हमको पूछे भाई तुम आगा खान को क्या कहते हो, तो हम अपना तरीका उसके सामने नहीं रखते। सूफी लोगों, आप सूफियों को मिले हो कभी? इधर बहुत सूफी हैं, अमेरिका में बहुत से सूफी हैं, बहुत से सूफी स्कूल्स हैं।
कभी ढूंढ के उनकी मुलाकात करो, आपको अपने मजहब से ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। हम अपने मुर्शिद की बातों को गैरों के से छुपाते हैं। हमारा तरीका नहीं कोई भी सूफी तरीका है। सूफी लोग लोगों से बातें नहीं करते, अपने तरीके को छुपाते हैं। हम तक़िया करने वाले शिया हैं, और शिया मजहब के अंदर तक़िया किया जाता है। तक़िया ये है कि असल चीज को उन लोगों से कि जो नहीं समझते छुपाया जाता है। यही वो बात है इस पाठ के अंदर कि कोई संत मिले सुधीर, कोई ऐसा जानने वाला सुधीर कहते हैं जो छोटी सी बात को पकड़ के सारी समझ जावे, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं शार्प इंटेलिजेंट। ऐ सखी, मेरे दोस्त, अपने महबूब प्यारे की बातें किसको बताएं? सखी वालम विरह निवात, अपने महबूब की जुदाई की बात, जो महसूसात और जज्बात पैदा होते हैं, किसको कहें, किसको सुनाएं? क्योंकि सब लोग उस चीज के अहल नहीं, लायक नहीं। फिर फरमाया कोई संत मिले सुधीर, कोई ऐसा संत मोमिन मिले जो निहायत ही शार्प समझदार हो, फहीम हो, फिरासत वाला हो। रसूलुल्लाह फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो। मोमिन में फिरासत बहुत होती है। मोमिन एक किनारा देख के सारा समुंदर अबूर करता है। मोमिन बड़ा तेज होता है। मोमिन की अक्ल बहुत तेज होती है। मोमिन एक थ्रेड का टुकड़ा उठाता है, एंड तक पहुंच जाता है, उसका नाम मोमिन है। मोमिन वो है कि जो सब मरम जानता है लेकिन इल्म की राह पे चलता है। कोई संत मिले सुधीर, समझ ही नहीं रही है। जब कोई ऐसा राजदार मिल जावे ना, फिर उसके साथ बैठ के महबूब की बातें होती हैं। क्यों? कि वो जानता है महबूब की महबूबियत और हुब क्या चीज है। अरे गैरों को हम अपने जोश में आके कह देते हैं हम आगा खान का खुदा मानते हैं। आगा खान खुदा नहीं है। आगा खान हम जिसका नाम है, आगा खान तो उसके बदन का नाम है। उसका बदन खाता है, पीता है। अगर आप इमाम को बदनी हालत में समझते हो तो इस्माइली मजहब जानते ही नहीं हो। इस्माइली मजहब जानते ही नहीं हो। उसकी बदनी हालत जो है वो तो एक आम इंसानों की तरह की है। अलबत्ता उसका बदन भी तमाम दुनिया के इंसानों से आरफा और आला है। लेकिन हम इमाम की बदनी हालत से वाकिफ होवें या ना होवें, हमारा ताल्लुक उसकी नूर के साथ है। गैरों को ये कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों के साथ आप कैसी सीरियस गुफ्तगू कर सकते हो? 3, 4, 5, 8, 10 बरस के बच्चों का ग्रुप है और आप उनके अंदर बैठ के मुझे बताओ क्या करोगे? कोई सीरियस टॉक कर सकते हो इन बच्चों के साथ? गैर जो हैं, जो इस्माइली मजहब को नहीं जानते, उनका हाल ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों की तरह है। तिफलान नादान है। उनके साथ अपने इमाम की बात मत करो। हमारा इमाम है, हमारा मुर्शिद है, बस हो गया, तय हो गया। फिर आप उसको क्या भी मानो। गैरों के सामने अपने मजहब को मत रखो, क्योंकि ये मजहब जो है छुपा हुआ मजहब है। छुपा हुआ क्यों? ईसा नबी अलैहिस्सलाम फरमाता है, बाइबल में है कि सूअर के सामने मोती मत डालो। सूअर के सामने मोती मत फेंको, उसको उसकी कोई कदर नहीं। अपने मजहब की बात अपने दिल में रखो। अपने दिल में रखो, अपने दिल के अंदर उसको याद करो, अपने दिल में उसको देखो, अपने दिल में उसकी छवि बांधो। वो नूर है। हमारा ताल्लुक नूर के साथ है। नूर पैदा नहीं होता, नूर मरता नहीं, नूर का कोई बाप नहीं, नूर की कोई माँ नहीं, नूर को बीमारी नहीं, नूर को भूख नहीं, नूर को नींद नहीं। वो नूर ही नूर है। उस नूर को जानो,
بدن اور نور کو مکس مت کرو، وہ نہیں ہوگا۔ آپ میں سے میجورٹی پاکستان کے اندر سے آئے ہیں، میجورٹی، اور میجورٹی پاکستان کے اندر ہندوستان سے جا کے لے گئے۔ سندھی لوگ تو بہت تھوڑے اسماعیلی ہیں۔ میں خود امرتسر کا رہنے والا ہوں، پنجابی ہوں۔ آج سے تقریباً 68 ایئرز پہلے کی بات کروں، 1916 کا ذکر کرتا ہوں۔ اس وقت کراچی میں چھوٹی جماعت تھی، 2 جماعت خانے تھے، بغیچہ بھی تھا، کھارا در کا جماعت خانہ بھی تھا۔ کھارا در کا وہ جماعت خانہ جو ابھی دکھتا ہے نہیں، پرانے مسافر خانے کے بازو میں چھوٹی سی گلی کے اندر تھوڑی جماعت تھی، مشکل سے 3-4 ہزار اسماعیلی تھے اس وقت۔ جماعت کے اندر بعض عابد لوگ ایسے اس میں تھے جو صبح کی عبادت رات کے 12 سے لے کے صبح کے 5 بجے تک کرتے تھے، عابد تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا ہوا تھا۔ بعض میں اس گروپ کے اندر کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے کہ جو اس گروپ کے لائق نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ یہ گروپ بہت برسوں پہلے سے چلا، مگر کئی برسوں کی عبادت بندگی کے بعد، یہ 1916 کی میں بات کرتا ہوں، اس گروپ کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، اور خصوصاً طور پہ 2 شخص ایسے تھے کہ ان کے اندر عبادت کی وجہ سے فخر پیدا ہو گیا۔ فخر پیدا یہ ہو گیا کہ عابد اور معبود، عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ دونوں ایک ہے۔ یہ خیال پیدا ہو گیا۔ عابد معبود کے ساتھ مل جاتا ہے خیالی اور تخیلی حالت میں، مگر وصل ہوتا ہے موت کے بعد۔ موت سے پہلے عابد اور معبود کا وصل نہیں ہوتا۔ جب موت ہو جاتی ہے اور وصل ہوتا ہے تو اس کو ہم فنا فی اللہ کہتے ہیں، واصل بحق ہوا، وہ درجہ جدا ہے۔ لیکن جب تلک سانس چلتی ہے، جب تلک دنیا کے اندر زندگی ہے، تب تلک اس پاک پروردگار کی ذات کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا سوائے نبیوں اور اماموں کے۔ یہ چیز وہ لوگ سمجھے نہیں۔ ایک کا نام تھا عبداللہ پارو، دوسرے کا نام تھا کمڑیا جان محمد، جمعہ جان۔ یہ 2 اس گروپ کے سرمختار تھے۔ غرور آنے کی وجہ سے ایسی بات بنی کہ مولا حضرت امام سرکار سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ آئے، اور یہ دیدار کرنے کے لیے نہ آئے۔ یہ ادھر بیٹھ کے جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے اپنی عبادت میں مشغول رہے، اور لوگوں کو بھی انہوں نے منع کیا کہ تم دیدار کرنے کی ضرورت نہیں، ظاہری دیدار کی کوئی ضرورت نہیں، مولا کی ضرورت ہوگی تو خود چل کے آئے گا۔ یعنی بعض ایسی باتیں تھی کہ جن سے دوسرے لوگ بھی ظاہری دیدار کے لیے بھی محروم رہ گئے۔ امام نے ان دونوں کو پیغام بھیج کے کھارا در جماعت خانے کے اندر بلوایا۔ عبداللہ پارو اور کمڑیا جمعہ جان محمد کو کھڑا کیا۔ چیف مشنری حسینی کو حکم کیا، حسینی تھوڑا سا تیل منگاؤ۔ ایک والنٹیئر جا کے تیل لے کے آیا، بوتل میں سے تیل کی چند بوندیں امام نے عبداللہ پارو کے ہاتھ پہ ڈالی،
پانی منگا کے اپنے ہاتھ مبارک سے تھوڑا پانی ڈالا اور عبداللہ کو کہا مکس کرو. تیل اور پانی مکس نہیں ہوتا. حکم کے حساب سے بہت ہاتھ گھسے, ایسا کر کے دیکھے تو تیل الگ ہے, پانی الگ ہے. امام فرمایا جماعت کے اندر کی بات ہے, بھری جماعت کے اندر اس کی امتحان ہو رہا ہے. دیکھو عبداللہ, تم پانی ہو, ہم تیل ہیں. تیل اور پانی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. یعنی مرید انسان عام طور پہ امام جیسا نہیں ہو سکتا. امام کی بدنی حالت کو اور امام کی نورانی حالت کو, تیل اور پانی کو ملاؤ مت. بدنی حالت جدی ہے, نورانی حالت جدی ہے. امام کے بدن کو انسان ہی سمجھو. ہاں, اس کا بدن تمام جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں سے سب سے اونچا ہے, بلند ہے, اعلیٰ و رفع ہے, پاک ہے. وہ بدن بھی پاک ہے امام کا, لیکن پھر بھی وہ بدن ہے. اگر یہ نبیوں اور اماموں کے بدن کو زمین نہیں کھاتی, چاہے 10,000 برس بھی ہو جائے کسی نبی کو دفن ہوئے ہوئے, تو نبیوں اماموں کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی. ان کے بدن ایسے کے ایسے رہتے ہیں ہزاروں سال گزر جانے پر بھی. لیکن بدن آخر بدن ہے. ہم اسماعیلیوں کو حضرت امام کے نور کے ساتھ زیادہ تعلق ہے. ہمارے ایسے لاکھوں اسماعیلی بھائی ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر کبھی امام کا دیدار نہیں کیا. زندگی بھر تو ٹھیک ہے, لیکن 20 پشتیں ہو گئی, 20 ان کی پیڑیاں نسلیں ہو گئی, باپ سے بیٹے اور بیٹے اور بیٹے اور بیٹے, 20 پشتیں ہو گئی, ہزار برس نکل گیا ہے. ایسے لاکھوں اسماعیلی ہیں جنہوں نے حضرت امام کا ظاہری دیدار کبھی نہیں کیا, مگر پھر بھی وہ اسماعیلی ہیں. انہوں نے امام کے باطنی دیدار کیے ہیں, انہوں نے امام کی نورانی حالت کو دیکھا ہے, اپنے بدن میں پایا ہے, اپنے دل کے اندر پایا ہے. یہ ہے اسماعیلی مذہب, کہ حضرت امام کی نورانی حالت کو ہم سمجھ سکیں. اسماعیلی مذہب کا مین مقصد یہ ہے کہ امام کے نور کو جان سکو, لیکن آپ اس کے نور کو اس کے بدن کے ساتھ مکس مت کرو. لوگوں کو مت کہو کہ ہم امام کو خدا کہتے ہیں, پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. لوگوں کو ساتھ یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کے ساتھ مذہبی بحث مت کرو جب تک کہ ان کے اور اپنے دونوں کو مذہب کو جانو, دونوں کا مذہب پتا ہوئے. کوئی کرسچن کے ساتھ بحث کرو تو کرسچینٹی کا پتا ہونا چاہیے, ساتھ ساتھ اپنے مذہب کا پتا ہونا چاہیے. دونوں چیزوں کو جانے. ایک آدمی کو انگلش میں سے گجراتی میں ٹرانسلیشن کرنا ہے تو وہ انگلش بھی جانتا ہے, گجراتی بھی جانتا ہے, تبھی ٹرانسلیشن کر سکتا ہے. غیروں کے ساتھ جب آپ کوئی بھی بحث کرو تو ان کا مذہب بھی جانو, اپنا مذہب بھی جانو, تو بحث کر سکو. لیکن اپنا مذہب ہی نہیں جانتے تو دوسرے کے مذہب کو ہم جان کے کیا کریں گے, ان کے ساتھ بحث کر کے بھی کیا کریں گے. اس وقت دنیا میں کتنے ایسے پیپر ہیں, ایسے میگزینز ہیں, ایسی کتابیں ہیں. آج سے کئی برسوں سے, اس امام کے زمانے میں نہیں, ہمارے ہر امام کے زمانے کے اندر اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جنہوں نے اسماعیلیوں کے اوپر الزام لگایا کہ یہ ایک انسان کو خدا کہتے ہیں. ارے بھائی, ہم انسان کو خدا نہیں کہتے, لیکن ہمارے اسماعیلی خود اپنے منہ سے بول دیتے ہیں کہ ہاں ہم آغا خان کو خدا کہتے ہیں. نورانی حالت اور چیز ہے, بدنی حالت اور چیز ہے. غیر لوگ جو سمجھتے نہیں ان کے ساتھ آپ ایسی باتیں مت کرو. لیکن ہم اپنے امام کو کیا جانتے ہیں, وہ تو بیت الخیال کی عبادت کر کے دیکھو تب پتہ لگے کہ اس کے بغیر اور کوئی ہے ہی نہیں. اے سخی والم رہنی وات, میرا جو روح ہے وہ امام کا روح ہے. میرے اور اس میں جدائی کیا ہے؟ میری روح کہاں سے آئی؟ خدا کی طرف سے. رسول اکرم کو پوچھا گیا یا نبی روح کیا چیز ہے, تو حضور چپ ہو گئے. چپ اس لیے ہوئے
کہ मैं इन अरबों को कहने जाऊं कि रूह क्या चीज है तो समझेंगे तो नहीं। फौरन वही नाजिल हुई, कुल ऐ नबी इनको कहो अर्रूह अम्र मिन रब्बी, रूह जो है मेरे रब के हुक्म से है। बस इतना ही जवाब दिया, रूह मेरे रब के हुक्म से है। अर्रूह मिन अम्र रब्बी, तो खुलासा तो ना हुआ। क्यों ना हुआ? लोग इसके लायक ना थे। तो रूह तो समझने की चीज है, समझने की चीज है, और उसके लिए ही हमारे अंदर बैतुल ख्याल है। हमारे इस्माइली मजहब की सबसे आला कोई चीज कहते हैं, वो इबादत जब तक नहीं करते मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, तो आपने तब तक इस्माइली मजहब को कुछ नहीं समझा। बच्चों के खेल की तरह खिलौने से खेल रहे हो और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, इस्माइली मजहब को जानना है तो सुबह की इबादत करो। सुबह की इबादत से पता लगेगा कि इमाम क्या है, रसूल क्या है, अल्लाह क्या है, मैं क्या हूं। सब चीजों के खुलासे हो जाएंगे, वगरना कुछ नहीं, इधर उधर मारे मारे फिरते रहेंगे। मौलाना हजरत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि 2 बरस पहले दार एस सलाम आए। इमाम ज़मान ने नवंबर की 20 तारीख को दार एस सलाम में कदम मुबारक किया। कुछ 6 महीने पहले दार एस सलाम से 120 मील पे एक छोटा सा शहर है, उसको मोरोगोरो कहते हैं। मोरोगोरो में अपनी एक इस्माइली लड़की, 20-21 बरस की लड़की है, शादी हो चुकी है, एक बच्चे की माँ है। कहीं किसी दरख्त के नीचे शाम के वक्त रफ़ा हाजत के लिए गई और उस दरख्त के ऊपर एक जिन था। उस जिन ने इस लड़की को पकड़ लिया। जिन्नात हैं, हमारा मजहब कबूल करता है, कुरान पाक के अंदर जिन्नात का खुलासा है, जिन्नों की हस्ती दुनिया के अंदर है। रसूल अकरम फरमाया कि कभी भी मुसाफरी में, सफर में कहीं भी जाओ, आपको रफ़ा हाजत हो यानी पेशाब या पाखाना करना हो तो कभी भी दरख्त के नीचे कभी मत करो। बाज दरख्तों के ऊपर बाज जिन्नात और रूहें रहती हैं। हुजूर फरमाया आसमान के नीचे बैठो, किसी साये के नीचे नहीं, जंगल में। और यह भी फरमाया है कि अगर एक मकान 2 बरस तक बंद पड़ा है, कोई उसमें रहता नहीं, उस 2 बरस के दरमियान उसमें बत्ती भी नहीं जली, 2 बरस के दरमियान दरवाजे भी नहीं खुले, हुजूर फरमाते हैं उस मकान को जिन्नात कब्जे में कर लेते हैं, उस मकान में मत रहो। ये हमको हदीस में से चीजें मिलती हैं, मगर जिन्नात हैं। जिन्नात में मुसलमान भी हैं यानी खुदा को मानने वाले, जिन्नात के अंदर काफिर भी हैं जो खुदा को नहीं मानते। मौला अली ने बहुत से जिन्नात को मारा, हजारों जिन्नात को कत्ल किया, जिन्नातों के बादशाहों को ज़ीर किया। उसका जिक्र आज नहीं हो सकता। इस जिन ने हमारी इस इस्माइली बच्ची को पकड़ लिया तो क्या किया? इसकी नींद खत्म हो गई, औल फौल बकने लगी, बदन तप गया, बेवकूफों और पागलों की तरह उसका रहना सहना और बिहेवियर हो गया। कोई मुल्ला के पास लेके गए, उसने बड़ी कोशिश की, झाड़ फूंक किया, आमतौर पे जो करते हैं, कुछ ना हुआ। एक को छोड़ के दूसरे के पास जावे, जो भी कह के फलाना मुल्ला, फलाना मौलवी, फलाना बहुत जानता है, उसके पास ले जाएं। जमात खाने के अंदर भी बहुत सी तस्बीहें वगैरह निकाली, कुछ न हुआ। इमाम ज़मान के आने के करीब वहां एक को बहुत मशहूर एक आलिम था मुसलमानों में, उसके पास इसको ले गई।
तो ये लड़की तो अंग्रेजी भी नहीं जानती और अच्छी तरह से गुजराती भी नहीं जानती, मगर उसके सामने जाके फर अरबी के अंदर बोलना शुरू कर दिया। जिन्होंने कहा हाँ मैंने इसको पकड़ा है। भाई कब छोड़ोगे? तो जिन यानी ये लड़की बोलती है, जबान इसकी अल्फाज जिन के। उस मुल्ला को कहते हैं तुम्हें खबर है कि इधर आले रसूल आ रहा है? कहते नहीं, बस तो चुप रहो, आले रसूल आ रहा है, मैं उसका दीदार करके इस लड़की को छोड़ूंगा। तो भाई उसका दीदार करके तुम छोड़ोगे तो अभी से छोड़ दो। कहते नहीं, ये लड़की उसकी मुरीद है और ये जरूर उसके पास जाएगी। जब ये जाएगी तो मुझे दीदार होएगा, मैं फौरन छोड़ दूंगा। बाकी सारी दुनिया के मुल्ला, उसको कहता है सारी दुनिया के मुल्ला तुम्हारे जैसे मिल के आएंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। खामोश हो गया। इमाम आए, उस लड़की को लेके उसकी माँ मेरे घर पे आई। मैं पहले उधर था नहीं, मैं तो यहाँ था, कनाडा में था। हजरत इमाम के आने से चंद दिन पहले ही मैं दार एस सलाम पहुंचा। मेरे पास आके उसने ये, उसकी माँ ने सारी हकीकत बयान की। मैंने कहा बेवकूफ, उधर लोगों के पास मारी मारी फिरती, ये तो अपने मजहब का तरीका नहीं। कहती मिशनरी साहब क्या करूं, इसके जो सास ससुर हैं वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, वहमी हैं, ये ले गए, मैं क्या करूं, लड़की तो दे चुकी हूं। मैं बोला देख अभी मौला आते हैं, सब्र करो। मौला आए, वो लड़की की जो माँ है वो हमारी रिलीजन टीचर है, हमारे इस्माइली स्कूलों में सिखाती है। काउंसिल में जाके मुखी कमरियों को जाके सबको कहा हाँ हाँ, सबने अमूमन हमारे जो ऑफिसर होते हैं वो ऐसे ही हाँ हाँ कर लेते हैं। सबके काम होते भी नहीं वैसे, वो भी बेचारे मजबूर हैं, क्या करें, उनको और भी कई काम होते हैं। मुझे कहा मिशनरी साहब क्या करूं? मैंने कहा देख, परसों तुझे इमाम के हाथ से सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं। इमाम ने फरमान किया था कि 10 बरस से ज्यादा जिन्होंने मेरी खिदमत की है, मैं अपने हाथ से उनको ये सिल्वर जुबली के टाइम पे मैं सर्टिफिकेट दूंगा। गैर कौम के भी लोग से ऐसे 200-250 आदमी थे जिनको इमाम सर्टिफिकेट देने वाले थे। मैं बोला देख, सर्टिफिकेट देने वाले हैं, तू इधर उधर घूमे फिरेगी, तेरा कोई काम नहीं करेगा। जब भी तू सर्टिफिकेट लेने जाए तो कह देना खुदावन, बहुत लंबी चौड़ी बात मत करना, कहना खुदावन मेरी लड़की को जिन ने पकड़ दिया, इतने लफ्ज कहना। हिम्मत रखना। लड़की ने यानी लड़की की माँ ने ऐसा ही किया। जब इसको सर्टिफिकेट दिया तो कहती है खुदावन मेरी लड़की को जिन ने पकड़ा। माँ बाप फरमाया कल सुबह उसको बंगले लेके आओ। इतनी खुश हुई, सुबह उसको बंगले ले गई। अभी बंगले पे इसको अंदर कौन जाने दे, बाहर पुलिस का पहरा था, दरवाजा बंद था। इसने बहुत कुछ कहा कि भाई मुझे बुलाया गया है। ओके बैठ बैठ, बुलाया गया है। बहुत देर हो गई, अंदर खबर जावे ही नहीं कि ये बेचारी इधर आई है लड़की को लेके। यहां तक के इमाम जमान गाड़ी के अंदर बैठ के, हमारे तांजानिया के प्रेसिडेंट नेरेरे की गाड़ी, ड्राइवर भी नेरेरे का, उसने कहा था मौला को कि मेरी अर्ज ये है कि आप यहाँ जब तक रहो मेरी पर्सनल गाड़ी यानी जो प्रेसिडेंशियल कार है वो इस्तेमाल करो और मेरा ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाए, अफ्रीकन ड्राइवर है। सिक्योरिटी का बहुत बंदोबस्त था। जब गाड़ी में सरकार बैठ के निकले, मौला अकेले ही थे पीछे, बाकी सब ऑफिसर दूसरी गाड़ियों में आए थे। अफ्रीकन ड्राइवर आगे, मौला पीछे बैठे हुए। मेन गेट जो लोहे का दरवाजा था, जब वो खुला पुलिस ने सैल्यूट किया। ये लड़की अपनी माँ का हाथ छुड़ा के भाग के गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई। गाड़ी खड़ी हो गई।
गाड़ी खड़ी हो गई। ये बात खुद वो अफ्रीकन ड्राइवर सुनाता है कि मेरा पाँव ब्रेक पे नहीं है, अभी तक इंजन स्पीड से चल रहा है और गाड़ी गियर में है, फ्री भी नहीं, मेरा पाँव एक्सेलरेटर पे है, इंजन फास्ट चल रहा है और गाड़ी खड़ी है। मौलाना हजर इमाम ने अपना हाथ ऐसा करके उस लड़की को यूं जो ऐसा किया, तो वो ड्राइवर कहता है कि जैसे इस लड़की को उठा के कोई ऐसा ले जाता हो, है ना, वो चल नहीं रही थी, ऐसा ग्लाइड कर रही थी। लड़की एक साइड में हो गई, गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि गाड़ी तो गियर में ही थी और एक्सीलरेटर चालू था। अभी पीछे जो अपने ऑफिसर्स थे वो भी निकल गए, कोई खड़ा ना रहा, और वो लास्ट डे था इमाम का। ये बेचारी परेशान बाहर निकली एक टैक्सी लेके, तो दरबार में आई। मौलाना हजर इमाम तो दरबार के अंदर थे। मौला की नजर पड़ी तो किसी ऑफिसर को कहा कि वो लड़की को कहो बाहर खड़ी रहे। मौला जब बाहर निकले दरबार में से, तो लड़की के सामने जाके मौला खड़े हो गए। उसकी नजरें निगाहें नीची रहीं। मौला ने कहा मेरी तरफ देखो, इंग्लिश में बोले, उर्दू में बोले। माँ ने कहा मौला को देख, मगर उसकी हिम्मत ना हुई। इमाम ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसने इमाम को देखा, निगाहें चार हुई, एकदम हंस पड़ी, मौला के पांव पे गिर पड़ी, खड़ी हुई। मौला ने बहुत दुआ सीख दी, वो जिन चला गया। उसी वक्त लड़की की हालत ही बदल गई, शक्ल बदल गई, हालत बदल गई, एकदम अकल में आ गई। मैंने आपको ये बात इसलिए सुनाई है, मोजज़े तो मौला के मोमन भी कर सकते हैं। इमाम के लिए मोजज़ा करना मामूली चीज है, लेकिन हमारे इमाम का ये जो काम था, गैरों के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, दूसरी कौमों के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। किसके लिए ये खेल इमाम ने किया है वो हमें पता नहीं, लेकिन मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि हमारा जो इमाम है वो जाहिर में इंसान जरूर है, मगर वो इंसान नहीं, वो खुदा का नूर है। लेकिन ये बात हमें समझने की है, गैरों को कहने की नहीं। गैरों को तो हम यही कहेंगे हमारा इमाम है, हमारा लीडर है, हमारा मुर्शिद है, क्योंकि गैर इन चीजों को नहीं समझ सकेंगे। कोई संत मिले सुधीर समझी नहीं रही है। इस वक्त बहुत सी ऐसी शरारतें दुनिया में जारी हो रही हैं। एक बदमाश ने एक किताब लिखी है जिसके लिए आपको जमात खाने के अंदर अनाउंसमेंट हो चुकी है। लंदन में किसी ने किताब लिखी है, मैंने वो किताब देखी है, पढ़ी है। उसके अंदर हमारी बहुत सी मजहबी चीजों का जिक्र किया है, दसबंद का जिक्र है, बहुत सी टोलियों मंडलियां जो हमारी हैं उनका जिक्र है, गटपाट नियाज का जिक्र है। भला एक गैर कौम के आदमी को ये बातों का पता कैसे लगता है? हमारे बेवकूफों के साथ, हमारी कौम के अंदर बेवकूफ ज्यादा हैं, इन बेवकूफों से मिल के होता है। और हमारी कौम के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गैरों से शादियां की हुई हैं। 79 के अंदर हजर इमाम लंदन आए, 7 दिन ठहरे। एक दिन इमाम ने, उस दिन एक खास मंडली की मेहमानी थी। इमाम इधर बैठे हुए हैं, मंडली तो उधर पीछे, ये दीवार के पिछली तरफ उस रूम के अंदर थी। मौलाना हजर इमाम ने मुखी को कहा, मुखी वो फलाने हॉल में उस मंडली की मेहमानी में एक नॉन इस्माइली बैठा है। मुखी साहब ने फौरन एक वॉलंटियर को बुलाया, भाई उधर एक देखो जाके। ये आदमी उधर गया, ऐसी निगाहें डाली, लगभग 2-2.5 हजार आदमी थे। वापस आके मुखी को कहा उधर कोई नहीं है। जब मुखी को कहा कि उधर कोई नहीं है तो इमाम तो सुनते थे। इमाम फरमाया है,
मुखी बेचारा खुद गया। माँ बाप ने उसको इशारा किया कि जब भी तुम एंटर हो जाओ तो राइट साइड बिहाइंड, मर्दों की साइड में। अंदर गया, एक एक की शक्ल देखते 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 पीछे उसको एक आदमी की जब आंखें जो लगी तो उसने निगाहें नीची कर ली, इसको शक पड़ा, भाई कौन हो तुम? कहते मैं इस्माइली नहीं हूं, आओ बाहर आओ। अब उसके पास बड़ी मंडली का कार्ड था, इशू किया हुआ कार्ड। तो भाई तुम इस्माइली नहीं? कि हाँ मैं फलाना हूं, यानी कोई इंडियन था, हिंदू था। तो ये कार्ड कैसे आया कि मेरी बीवी है ना वो इस्माइली है, और आज वो बीमार हुई, उसने मुझे कहा कि तुम चले जाओ। देखा हमारी कौम के अंदर बेवकूफ हैं, उसका सबूत मिला ना। इस्माइली लड़की बड़ी मंडली में, जिसका मैं नाम जाहिर करना नहीं चाहता, वो उसकी मेंबर है, उसको कार्ड मिला है, तो उसने ये समझा कि चलो भाई डिनर पे मुर्गी खाने का वक्त आएगा, मैं बीमार हूं नहीं खा सकती तो मेरा शौहर जाके मुर्गी खावे, ये समझ के उसने ऑर्डिनरी डिनर की तरह अपने शौहर को भेज दिया। हमारी कौम के अंदर पहली चीज तो ये है, दीनदारों, जहां तक बन सके इस्माइलियों से ही शादी करो, नहीं तो तुम्हारी औलाद को भी तकलीफें होंगी, तुम्हें खुद को भी तकलीफें होंगी। ठीक है, ऐसे हालात बन जाते हैं। तो पहले इस्माइली बना लो उसको, जिससे शादी करनी है पहले इस्माइली बना लो। 6-12 महीने उसको इस्लाम की तालीम दो, इस्माइली मजहब की नहीं। इस्माइली बनाने के बाद उसको इस्लाम की तालीम दो, इस्माइली नहीं। इस्माइली मजहब तो बड़ी पैदाइशों और जन्मों और जिंदगियों के बाद नसीब होता है। 2-3 बरस तक उसको बाहर ही रखो और उसको इस्माइली मजहब सिखाओ, यानी भले जमात खाने आवे मगर किसी टोली मंडली में मत डालो। पैसे की बात नहीं है हमारा मजहब कि पैसे दे के चलो भी हम किसी बड़ी मजलिस के मेंबर बन जाते हैं। हकीकत तो उसकी ये है कि हम अपनी मौला से मोहब्बत करते हैं, मजहब को दुआ पढ़ते नहीं, और $500 दे के कोई मजलिस के मेंबर बन गए तो उससे हमको वो मजलिस दोज़ख में से बचाएगी नहीं। दुआ पढ़ो, दस्तबंद दो, फिर मजलिस के अंदर आओ। हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए। हमारे मजहब की जितनी भी पहली ड्यूटियां हैं, उन ड्यूटियों को, यानी रोज जमात खाने आना, इबादत करना, दुआ पढ़ना, दस्तबंद देना, तस्बीहां निकालना, नेक आमाल करना, ये चीजें हो जाने के बाद बैतुल ख्याल की इबादत का दर्जा है। फिर कभी इमाम ज़मान के लिए हम कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, खिदमत पेश करना चाहते हैं, तो चलो भाई $200-500 दे के मजलिस के मेंबर बनो। ये एक किस्म की इमाम ज़मान के हुजूर में खिदमत है, जैसे कि लाइफ में 50 बरस तक इमाम की हमने खिदमत की। अगर इमाम का घर का एक बावर्ची है जो उसका खाना पीना पकाता है, मौला का एक धोबी है जो उसके कपड़े धो देता है, मौला का एक नौकर है कि जो घर में सफाई कर देता है, तो ऐसी खिदमत के लिए हमें तो चांस नहीं मिल सकता। तो हम उस नौकर की भाई तनख्वाह दे देवें, 50 बरस तक उस नौकर की तनख्वाह दे देवें, तो हमको ऐसा होवे कि हमने इमाम ज़मान की खिदमत की है। टोली मंडलियों का यही एक बख्शिश है। बाकी नूर के साथ हमारी मंडलियों टोलियों का कोई ताल्लुक नहीं। नूर का ताल्लुक जो अगर है तो वो सुबह की इबादत से है। मौलाना हजरत इमाम की जो असली नूरानी हालत है ना, उसको समझो, और गैरों के साथ अपने मजहब की बातें मत करो, और उसके नूर को उसके बदन के साथ ताल्लुक मत डालो। ये मेरा आज का हजरत इमाम की इस सालगिरह मुबारक के ऊपर पैगाम है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकत की समझ देवे, मौला अपनी नूर की समझ देवे, मौला दसन सुकरीत में पूरा रखे, मौला फरमान बरदार मोमन बनावे,
مولا علم کی توفیق دے، مولا ہر آفت بلا سے دور رکھے، مشکلیں مصیبتیں دور کرے، بدوں سے اور بدماشوں سے بچا کے رکھے، بے ایمانوں سے بچا کے رکھے، شیطان سے بچا کے رکھے، آفت بلائیں مولا دفع دور کرے، مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، ساری دنیا کے تمام اسماعیلیوں کو دین میں، دنیا کے اندر سکھی آباد کرے، جان و مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، تندرستی میں برکت دے، کٹم قبیلے میں جماعتوں کے اندر اتفاق و محبت بخشے، اور امام ہمیشہ راضی رہے، نیک امیدیں پوری کرے۔ خانہ ودان